Welcome to FM Education Academy YouTube channel. In today's video lecture, we will be seeing the question and answers of the chapter Chemical Equations from the TS textbook, and also all the questions which are important from examination point of view from this chapter we will discuss so that you can score full marks in all your slip tests and in all your marks. So, first, all the textbook questions we'll discuss. That is, let's start. The first question, as you can see here, is reflections on concepts. First question, second question, third question. Right. Next, we have fourth, and then second application of concepts. In that, you have three questions, and in third, higher order thinking questions, you have three questions. So now let us see the answers for these questions. First question was, what information do you get from a balanced chemical equation? So a balanced chemical equation can provide the following information. So before starting this answer, I would like to request you that if you have not watched part 1 and part 2 of this video, you can go and watch, because those are the explanations which I have given for this chapter. In this chapter only I am discussing question and answers. So a balanced chemical equation can provide the following information. First, it can provide reactants and products through symbols and formulae. Then it can provide ratio of molecules of reactants and products. Then, as molecular masses are expressed in unified mass U, the relative masses of reactants and products are known from the equation. Next, if the masses are expressed in grams, then the equations also give the molar ratios of reactants and products. Fifth point, if gases are involved, we can equate their masses to their volumes and calculate the volumes or those gases liberated at given condition of temperature and pressure using molar mass and molar volume relationship. Using molar mass and Avogadro's number, we can calculate number of molecules and atoms of different substances from the equation. So from this equation, we got to know that we can find out the symbols and formulae of the reactants and products, ratio of molecules, molecular masses, then masses in grams, then relationship between mass to volume, and we can also calculate number of molecules and atoms. Moving to second question. The second question in the textbook was, why should we balance a chemical equation? So this is an important question also, and the first question which we saw, that was also important. So here it is telling us, why should a chemical equation be balanced? So a chemical equation should be balanced because atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. According to law of conservation of mass, the total mass of the products formed in a chemical reaction must be equal to total mass of reactants consumed. Next, the fourth question is, balance the following chemical equations. So now let us balance these three questions. I'll explain in a very detailed and very easy explanation. Okay, if you're finding this video, don't forget to like this video, share this video with your friends. Okay, so let's continue. Balance NaOH plus H2SO4 giving rise to Na2SO4 plus H2O. In today's video, we'll learn how to balance this equation in 4 easy steps. But before that, I would like you to recall that in this equation, for balancing this equation, you have to follow some rules. And those rules are, first, you have to give preference to metals, example copper, iron, sodium. Then you have to balance non-metals, example sulfur, carbon, nitrogen, phosphorus, and then oxygen and hydrogen. Now, why oxygen and hydrogen are separated and why they are not mentioned in non-metals is that oxygen and hydrogen are very important elements, as we know, and they are used in almost all the living beings. All the living beings consist of oxygen and hydrogen almost. That is why oxygen and hydrogen are separate. So metals, non-metals, oxygen, hydrogen. This is the order which we have to follow. Now, for balancing, the first step will be whatever the chemical equation will be there, that you have to write with the correct chemical formula. Here already the chemical formula is given to you, so I will copy the same equation in step 1. That is NaOH plus H2SO4 giving rise to Na2SO4 plus H2O. Now for your easy understanding, I have given a different color to each element. That is, here if I observe, for writing the elements, I need to see the LHS, as we know. So here sodium is pink color, oxygen is blue color, hydrogen is red color, and sulfur is green color.
So how many elements are present? 4 elements are present as we see in the LHS. So in the step 2, what I will do is I'll write the element, the number of atoms, LHS and RHS. That is, I need to count how many atoms are present in this equation in order to balance it. So sodium, NaO, hydrogen, sulfur. I have written in order. Now LHS. See the LHS. How many atoms are present in sodium? See the coefficient. The coefficient is 1 here. So number of atoms on sodium of LHS is 1. Now coming to RHS. How many atoms are there for sodium? I said in my previous video that the atoms which are attached below to the element are also counted as atoms. So since 2 is attached to sodium, the number of atoms of sodium on RHS are 2. So I wrote here 2. Now oxygen. If you see oxygen here, oxygen is present on LHS 2 times. Here in sodium hydroxide, NaOH, as well as in H2SO4 here. So here the coefficient is 1. So 1 plus, here it is 4. So 4 into 1. Why 4 into 1? Because here the coefficient is 1. So 4 into 1 is 4. So 1 plus 4 into 1. Okay, that is nothing but 5 atoms totally on LHS. Now coming to RHS, again here oxygen is present 2 times. So 4 plus 1. Okay, 4 here plus 1. Now coming to hydrogen. In hydrogen, if I observe, the number of atoms are 1 plus 2. Now on RHS I have 2. Now coming to sulfur, if I see the number of atoms present in front of H2SO4 is 1 only. So only 1 atom belongs to sulfur. Here also number of atoms present in front of Na2SO4 is 1. So 1 belongs to sulfur. That is, sulfur is balanced if you observe here. Whereas sodium is not balanced, oxygen is not balanced, hydrogen is not balanced. Why? Because we have unequal atoms on both sides of LHS and RHS in case of Na, O and H. Now what is my step 3? My step 3 will be I have to make the atoms on both the LHS and RHS equal. So how to make the atoms on both the LHS and RHS equal? I need to multiply it with a suitable number such that it becomes equal to either LHS or RHS. So what to choose first? As I said you have to choose a metal from sodium, oxygen and hydrogen and sulfur. Which is the metal? The metal is sodium. So first we need to balance sodium. So for balancing sodium, what I can do is I can multiply this 1 with 2 so that it becomes 1 2 is 2. Because I need to make this is 1, this is 2. So I need to make this 1 as 2. So how can I make this 1 as 2? I can multiply this with into 2. So I'm multiplying this atoms of LHS of sodium with 2. So 1 2 is 2. So now it has become 2. So sodium is balanced. Okay, and the same things I'll copy in the remaining elements, that is oxygen, hydrogen and sulfur. Now what to do is balance the remaining elements. That is, I have to balance oxygen and hydrogen. But first, after you write how many, after multiplication and after making the LHS and RHS equal of a particular element, you have to write the equation again. So I'm rewriting the equation. What is being added? The same equation is there, but what is added here? 2 is added. Why is 2 added here? Because I have multiplied this with 2 in LHS of sodium. That is why before the compound of NaOH, that is sodium, I am writing 2. I said that you cannot write 2 below sodium. You have to write 2 below the compound. That is why I am writing this 2 below the compound. Now again count the elements. Same table, element, number of atoms, LHS, RHS. Sodium, same thing. I know 1 into 2 is 2 here. This is also 2. Now oxygen. Observe how many atoms are there on oxygen of LHS. This 2 belongs to sodium as well as oxygen as well as hydrogen. So number of atoms on oxygen is 2 plus 4. That is nothing but 6. Now here how many atoms are there for oxygen? 4 plus 1. That is 5 atoms are there. And in case of hydrogen again, 2 belongs to H also. So 2 atoms of hydrogen plus 2 atoms of hydrogen. That is 4 atoms on LHS of hydrogen. Now coming to hydrogen of RHS, 2 atoms of hydrogen on RHS. Now here we have 4, here we have 2, they are unequal. Here we have 6, here we have 5, there is again unequal. Whereas sulfur is already balanced, 1 and 1. Now what to do? What we can do? If you observe, if you have to follow the order, first metal then non-metal. But non-metal is sulfur here, but sulfur is already balanced. So the third thing which we should give order is oxygen. So we need to balance first oxygen and then I'll balance hydrogen. So if I see oxygen here, 6 is more than 5. So I will prefer for increasing the number of 5 to 6. How can I increase this number of 5 to 6? If I observe here, I have 1. So if I multiply this 1 with 2, I can write 4 plus 2 is 6. That is what I'm doing. See, if I multiply this 1 with 2, I can write 4 plus 2 is 6. So 6 and 6, it will be balanced. That is what I'm doing here. Now, since I multiplied into 2, I have to edit the RHS equation now. The same second equation will be followed because already 2 is added. What is changing here only? RHS of oxygen is changing. Which oxygen I am changing here? This side I am adding 2. 4 is already here. This is 4 plus 2. Here plus 2 I am adding. Okay. This was 1 earlier. So to 1 I am adding 2 as you can see here. So only that I am changing. That is before H2O the 2 will come because oxygen is there. Now again write the elements. So what are the elements here if I see? And sodium, oxygen, hydrogen and sulfur. Everything will be same. What is changed? Only
this is changed, and also oxygen will be changed in RHS. Why? Because this 2 belongs to hydrogen as well as this 2 belongs to hydrogen. And also number of atoms of hydrogen are changed. So 2 2s are 4. Now number of atoms on hydrogen are 4. This is also changed. Now observe, number of atoms of sodium is 2. Number of atoms of sodium is 2 in LHS and RHS. Again oxygen 6 6. Hydrogen 4 4. Sulfur 1 1. So if I see the number of atoms on LHS and RHS of all the 4 elements Na, O and H and S is balanced. So this same equation is nothing but my balanced equation, because from this equation only I wrote this table. So again I'm writing the same balanced equation, and then hence the equation is balanced. So this is how you balance NaOH plus H2SO4 giving Na2SO4 plus H2. That is, a balanced equation is 2NaOH plus H2SO4 giving rise to Na2SO4 plus 2H2O. Hope you have understood the video. If you did, please like the button and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you. In today's video lecture, you will learn how to balance KClO3 giving rise to KCl plus O2. But before that, I would like you all to please subscribe to my YouTube channel if you haven't already, and share the video with your friends. So the first step will be to write the unbalanced chemical equation. Here the unbalanced chemical equation is KClO3 giving rise to KCl plus O2. Now the second step will be you have to count the number of atoms on each side of the element. On the LHS you have to calculate how many atoms are there, and on the RHS also you have to calculate how many atoms are there. For that, you have to make a table, element on left hand side, number of atoms on right hand side on LHS and RHS. So the number of atoms, what are the elements here? The elements are potassium, chlorine and oxygen. So the number of atoms beside the whole compound KClO3 is 1 here, the coefficient is 1. So 1 belongs to K as well as 1 belongs to Cl as well as 1 belongs to O. So we are writing for potassium. So on the LHS, the number of atoms on potassium K is 1. So LHS 1. Now number of atoms on RHS of potassium is 1. I have written 1. Number of atoms of chlorine is again 1 here. So 1. Number of atoms of chlorine on RHS is 1. Now coming to oxygen. Number of atoms of oxygen on LHS here is 1, and here 3 is attached to oxygen. So 3 1s are 3. So number of atoms of oxygen on LHS are 3. Now number of atoms of oxygen on RHS are here, the coefficient is 1, here the atoms attached are 2. So 1 2s are 2. So number of atoms attached are 2. So if you observe, the third step will be we have to make the number of atoms of LHS of oxygen to be equal, because already potassium is balanced 1 1 and chlorine is balanced here 1 1. So we need to balance oxygen, that is this we have to make it as some number such that it becomes equal to RHS, and this 2 also we have to make it equal to LHS so that it becomes equal. So what to do for that? I know 3 and 2 are factors of 6. So I can multiply 3 with 2 and I can multiply 2 with 3 such that both will become 6. So that is what I am doing here. I am multiplying this 3 with into 2 so that it is becoming 6, and I am multiplying this 2 with into 3 so that it is becoming 6. I will do this simultaneously on both the sides so that both the sides I get equal number of 6 atoms. Now my equation after I add 6 here and I add 2 here and add 3 on the RHS will be, what I have done, I have added 2 atoms on the LHS of oxygen. So I said I cannot write it below, so I need to write it beside the whole compound. So in front of the whole compound I'm adding 2 atoms here as I have added on the LHS, and in the RHS I'm adding 3 atoms on the RHS. So where should I write? 3 in front of oxygen. So 3 in front of oxygen. I have done this. Now again I have to write the atoms whatever I'm getting from this equation. So potassiums are 2 as we can see here on the LHS, but here the potassiums are only 1, so 1. Now what about chlorine? Again 2 chlorines, so 2 chlorine. Now here how many chlorines are there? Here only the number is 1, so only 1 chlorine. Whereas oxygen, if I see 2 3s are 6 on LHS, 3 2s are 6 on RHS. So if I observe here, oxygen is balanced, but potassium is not balanced, as LHS and RHS of potassium is not equal, and also LHS and RHS of chlorine, Cl, is not equal. So what to do? I have to change both of these, but between these two, that is potassium and chlorine, which I should choose first, as I know potassium K is a metal and chlorine is a non-metal. So I have to choose metal first as the rules, right? Metal then non-metal. So metal I am choosing potassium. So I'll multiply on the RHS 2 to 1 so that it becomes 2, and on the LHS both will become 2. Now after writing 2 on the RHS, I am rewriting the equation. So the same equation will be there, 2KClO3. What is added here? What is changed? Only the RHS of KCl is changed. So before K, that I have to write 2. So before K I have to write 2 here. So 2KClO3 giving rise to 2KCl plus 3O2. Now let us count the number of atoms again. K potassium, 2 atoms on LHS. Potassium K, 2 atoms on RHS. Now chlorine, 2 atoms on LHS. And again chlorine, 2 atoms on RHS.
Oxygen 3 2s are 6 atoms and oxygen here 3 2s are 6. So if I observe the number of atoms of LHS and RHS of both K, Cl and O are balanced 2 2 2 2 6 6, right? So hence I'll write the fourth step, that is equation is balanced, and I'll write the balanced equation. This is the same equation. So you observe that when you follow the rules, that is when you balance metal and then when you are balancing non-metal, when we balance the metal only, then only chlorine is also balanced. That is when we balance metal, non-metal is also balanced. So hope you have understood how to balance. So now let us balance the third question C bit. AgNO3 twice plus Ki giving rise to AgI2 plus KNO3. So remember, here Ag is mercury, N is nitrogen, O is oxygen, K is potassium and I is iodine. So totally how many elements are there here? 5 elements are there. So first, what is your step 1? Write the unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation is given in terms of molecular formula to us directly. So same question we'll copy in step 1. Okay, that I have done at the last. Okay, 1 second. Yes. So step 1 I have written. Next, step 2 is you have to count the number of atoms. So while we count the number of atoms, what we should write in the table? Element, number of atoms, LHS, RHS. So first we'll write the elements Ag, N, O, K, I. These are the elements which we have. Now how to write the number of atoms? Observe on Ag, how many are LHS atoms? Only one is there before Ag, NO3, so only one atom is there on LHS. Now come to RHS. This is my RHS. On the RHS side again we have only one atom. Nothing is there means one atom is there. Next, see this nitrogen. Nitrogen, if you observe here, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 2 atoms जो है यहाँ पर लगे हुए हैं NO3 को. 2 atoms लगे हुए हैं NO3 को का मतलब क्या है कि ये जो 2 यहाँ पे है ना वो नाइट्रोजन को भी बिलोंग करता और ऑक्सीजन को भी बिलोंग करता. तो यहाँ पर नाइट्रोजन अगर मैं देखी तो 2 nitrogens are there here on LHS. And how many nitrogens are there on RHS? If you observe, nothing is there means before the number which is there before the compound you have to see. So the number which is there before the compound here is 1. So how many nitrogens you have on RHS? 1. अब ऑक्सीजन का देखिए आप. अब ऑक्सीजन का ऑलरेडी हम लोग LHS पे देखिए यहाँ पे 2 अटैच्ड है और ऑलरेडी ऑक्सीजन का खुद ही 3 अटैच्ड है. तो क्या करना, वैसे केस में आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, बिकॉज 3 और 2 दोनों भी ऑक्सीजन को लगे हुए हैं. सो वी हैव 3 2s are 6. तो कितने ऑक्सीजन है LHS पे? यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है. ना यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है RHS पे? 3 ऑक्सीजन है. के कुछ भी नहीं है मतलब 1 है LHS पे. के कुछ भी नहीं है मतलब 1 है. यहाँ पर I 1 है, फिर से LHS पे I 2 लगे हुए हैं यहाँ पे एटम्स I को, तो 2 एटम्स, ठीक है. अब स्टेप 3 विल बी आपको जो LHS और RHS के कोएफिशिएंट्स हैं ये तो दोनों इक्वल है. जो इक्वल नहीं है यहाँ पे N के LHS और RHS इक्वल नहीं है, O के LHS और RHS इक्वल नहीं है और I के LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो उनके कोएफिशिएंट्स हम लोग को इक्वल बनाना है. दैट इज़ माय स्टेप नंबर 3. तो सबसे पहले आप ऑर्डर कैसे करते, आप अपना प्रेफरेंस देते मेटल को, ठीक है. यहाँ पर हम लोग को मालूम कि पोटाशियम मेटल है लेकिन पोटाशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1. तो नेक्स्ट वी विल गो टू नॉन मेटल्स. यहाँ पे नॉन मेटल्स अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन है और आयोडीन है, ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करना, ठीक है. क्योंकि क्या होता है बाज़ वक्त ऑक्सीजन खुद ब खुद ही बैलेंस हुआ था जब हम लोग नाइट्रोजन और आयोडीन को बैलेंस करते. तो फर्स्ट बिफोर गोइंग टू अब क्या करना है हम लोग बैलेंस करेंगे आयोडीन को, ठीक है, बिकॉज आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल. आयोडीन को नाइट्रोजन और आयोडीन में से आयोडीन को बैलेंस करेंगे. तो कैसे बैलेंस करेंगे आप आयोडीन को? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. मेरे को ये 1 को 2 बनाना है. मैं ये 1 को 2 कैसे बना सकती? मल्टीप्लाई इट विद 2 सो दैट 1 2s बिकम्स 2. तो यहाँ पर भी 2 LHS पे आयोडीन है, यहाँ पर भी 2 RHS पे आयोडीन है, मतलब दोनों 2 2 बन गया. तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है? LHS पे 2 मल्टीप्लाई करना है. तो 1 2s are 2 and 2 एटम्स, ठीक है. अब आप देखिए क्या अब जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते ना तो फिर से क्या करना है, ये केमिकल रिएक्शन लिख लेना ये टेबल में से देखिए. तो क्या बदल रहा है यहाँ पे? खाली LHS ऑफ आयोडीन बदल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये बदलता खाली. और ये आयोडीन जब ये जो 2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ लिखना? नीचे लिखना है, बाजू लिखना, यहाँ सामने लिखना. क्यों लिखना सामने? आप कभी भी खुद ही से नीचे एटम्स नहीं ऐड कर सकते. रिमेंबर दैट इज़ अ रूल.
सो कहाँ पर लिखना ये आयोडीन, यहाँ पर लिखना बाजू, तो हम लोग लिख लिए बाजू 2Ki, ठीक है। फिर पूरा इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लिए। उसके बाद अब ये केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद फिर से काउंट करिए आप एटम्स LHS और RHS पे, सब तो सेम रहता, क्या बदला यहाँ पे 2 लिख दिया ना हम लोग, मतलब ये 2 K को भी बिलोंग करता और ये 2 I को भी बिलोंग करता। तो LHS पे जो I है मतलब आयोडीन है उसके एटम्स भी 2 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन बैलेंस हो गया 2-2, ठीक है। और पोटाशियम यहाँ पे 2 बन गया LHS पे, RHS पे 1H है, ठीक है। पोटाशियम के एटम्स चेंज हो गए। तो आप फिर से जो है क्या करना, आप बैलेंस करने की कोशिश करना। क्या बैलेंस करेंगे अब आप, पोटाशियम को बैलेंस करेंगे, पहले प्रेफरेंस आप पोटाशियम को देंगे। क्या है पोटाशियम यहाँ पे K, क्योंकि ये मेटल है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैं ये 1 को 2 बना सकती, कैसे बना सकती है 1 को 2 मल्टीप्लाइड विद 2, बिकॉज वी नो दैट 2 1 ज़ा 2, तो ये भी 2 बन जाता, ये भी 2 बन जाता पोटाशियम में। देखिए 1 2 ज़ा 2 करें हम लोग तो 2 बन गया। अब फिर क्या करना, फिर से आप केमिकल इक्वेशन लिखिए, सेम केमिकल इक्वेशन जो आपको दिख रहा ना यहाँ पे, आप लिखेंगे AgNO3 + 2Ki गिविंग राइज टू Ag(I2) प्लस आपको क्या करना है, आप कहाँ ऐड करें पोटाशियम के एटम्स RHS पे ऐड करें। तो RHS बोले तो यहाँ पे है ना, तो कहाँ लिखना, KNO3 के सामने लिखना 2, ठीक है। तो मैं लिख दी KNO3 के सामने 2। अब फिर से टेबल लिखिए, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स LHS RHS, ठीक है। अगर आप अब जब ऑब्जर्व करें तो डायरेक्टली ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो इसलिए हम लोग हमेशा ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन्स थे यहाँ पे अपने पास। अब यहाँ पर भी देखिए आप 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन्स है यहाँ पर RHS पे भी। और अगर आप दूसरे एटम्स भी देख लीजिए, यहाँ पर 1 मरकुरी, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 नाइट्रोजन्स है यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन्स है। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, अभी देखिए हम लोग 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन्स, K दैट इज़ 2 पोटाशियम, और यहाँ पे भी 2 पोटाशियम है। आयोडीन 2 आयोडीन एंड 2 आयोडीन। तो सिंस LHS और RHS के एटम्स इक्वल बना दिए हम लोग, इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो हम लोग स्टेप 4 में लिखेंगे हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और वो बैलेंस वाला इक्वेशन लिख देंगे। तो ये है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है आपको। अगर 4 मार्क्स में आया तो आप ये टेबल बना के करना। अगर 2 मार्क्स में आ रहा तो डायरेक्टली आप जो मैन्युअली करते ना 1-2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में ख़त्म हो जाता, वैसा कर सकते। लेकिन अगर 4 मार्क्स में आया तो आप ये फॉलो करिए, और अगर ऐसे वाले क्वेश्चन है तो यूजुअली 4 मार्क्स में ही आते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच क्वेश्चन, या mention the physical states of the reactants and products of the following chemical reactions and balance the equations। तो अगर आप लोग ये इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे, C6H12O6 गिविंग राइज टू C2H5OH प्लस CO2, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिजिकल स्टेट्स मेंशन करो बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के भी। फिजिकल स्टेट्स किसको बोलते हैं, या तो वो सॉलिड है आपको ब्रैकेट में लिखना है, या लिक्विड है ब्रैकेट में लिखना है, या गैस है ब्रैकेट में लिखना है, या एक्वस है ब्रैकेट में लिखना है। एक्वस मतलब सोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वस, ठीक है। तो ग्लूकोज हम लोग को मालूम है सॉलिड है, तो एस ब्रैकेट में लिखिए। C2H5OH लिक्विड रहता, ईथाइल अल्कोहल है वो। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो G ब्रैकेट में लिख रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, NH3 + Cl2 गिविंग राइज टू N2H4 + NH4Cl। NH3 जो है वो एमोनिया को बोलते हैं हम लोग। एमोनिया क्या है, यहाँ पे गैस है, तो NH3 के नीचे आप क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। Cl2 तो एज इट इज़ है, Cl2 भी गैस है, क्लोरीन गैस बोलते। और जो N2HO4 है वो लिक्विड है, ठीक है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता, ठीक है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग को समझा रही हूँ ना, तो समझाते वक्त पहले मैं आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर यानी फिजिकल स्टेट्स क्या है वो लिखा दे रही हूँ। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस भी करना है ना, 2 चीज़ें बोल रहे लोग यहाँ पे, पहले फिजिकल स्टेट्स लिखो बोल रहे, और उसके बाद क्या करो बोल रहे, नहीं मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्ट, हाँ बैलेंस भी करो बोल रहे। तो यहाँ पर आपके पास जो है थर्ड वाला क्या है, Na+H2 गिविंग राइज टू NaOH + H2। Na सॉलिड है, सोडियम, वाटर लिक्विड है L, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है यहाँ पे एक्वस है, ठीक है। और हाइड्रोजन H2 क्या है, गैस है। तो हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करो फर्स्ट वाले को आप, C6H12O6 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। और ऑक्सीजन्स कितने हैं, 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन्स 2 है। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं, 5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, कार्बन बैलेंस करेंगे, राइट। तो कार्बन यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन को, नहीं यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 + 1 3 कार्बन्स है।
और यहाँ पर कितने हैं 6 है। तो हम लोग क्या कर सकते, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 कार्बन्स कर सकते, ठीक है, और यहाँ पर 2 कार्बन्स कर सकते। तो 4 + 2 कितना बन जाता है हम लोग को 6, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ। C6H12O6 गिविंग राइज टू 2C2H5OH प्लस 2CO2। मैं 2 क्यों ऐड करी C2H5OH और CO2 से पहले, क्योंकि हम लोगों को होना था 6 कार्बन्स RHS पे भी। ये मेरा RHS है ना पूरा, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 कार्बन्स हो गए प्लस 2 कार्बन्स हो गए, तो टोटल कार्बन्स कितने बन गए 6 कार्बन्स बन गए, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए हाइड्रोजन्स को। हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पे 12 हाइड्रोजन्स है LHS पे। यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं 5 + 1 6 हाइड्रोजन्स है। तो आपको यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स 12 बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिख दिए थे, आप याद है आपको C6H12O6 गिविंग राइज टू 2C2H5OH प्लस 2CO2। ऑलरेडी हम यहाँ पे 2 जब लिखे तो 2 5 ज़ा 10 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैड 10 + 2 12। ये 2 हाइड्रोजन्स हो गए, ठीक है। और देखो आप लोगों को बोलती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये 2 है ना सामने, मतलब 2 हाइड्रोजन्स हो गए, और 2 5 ज़ा 10 हाइड्रोजन्स भी है, तो 10 + 2 क्या होता 12 होता। तो 12 हाइड्रोजन्स एंड 12 हाइड्रोजन्स। अब ऑक्सीजन्स ऑब्जर्व करिए आप, ऑक्सीजन 6 थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग को 6 होना ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स हो गए, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 + 2 क्या होता 6। तो ये है मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट वाला ऑफ C6H12O6 ये वाला, ठीक है। फिर सेकेंड वाला ऑब्जर्व करिए NH3 + Cl2 गिविंग राइज टू N2H4 + NH4Cl। आप लोग आंसर मत देखिए, आप लोग बस क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन भी जो है यहाँ पर गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो हम लोग पहले दोनों में से कोई एक बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग की मर्ज़ी है। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें क्लोरीन को, तो यहाँ पर कितने हैं 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे कितने हैं 1 ही क्लोरीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 क्लोरीन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाता NH3 + Cl2 गिविंग राइज टू N2H4 + 2NH4Cl 2NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2Cl हो गया। एक मिनट फिर से लिखती हूँ रिएक्शन। आप क्या करें, यहाँ पे 2 ऐड कर लिए, बस ये याद रखिए आप लोग 2 ऐड कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब नाइट्रोजन्स कितने हो गए 1 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 नाइट्रोजन्स हो गए, 4 + 1 5 बन गए नाइट्रोजन्स। क्लोरीन क्लोरीन कहाँ ऐड करे थे आप, यहाँ पे ऐड करे थे ना क्लोरीन, यहाँ पे ऐड करे थे आप क्लोरीन। तो 2 नाइट्रोजन्स + 2 नाइट्रोजन्स 4 नाइट्रोजन्स हो गए यहाँ पे आपके पास। हाइड्रोजन्स कितने हैं 4 हाइड्रोजन्स एंड 4 2 ज़ा 8, तो 8 + 4 12 हाइड्रोजन्स है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे पास आपके पास 3 हाइड्रोजन्स है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी तो मेरे पास यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे ना, कैसा 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे मेरे को 12 हाइड्रोजन्स आ जाते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे 12 हाइड्रोजन्स है मेरे पास, बिकॉज 4 2 ज़ा 8 + 4। और नाइट्रोजन्स ऑब्जर्व करिए 2 नाइट्रोजन्स + 2 नाइट्रोजन्स 4 नाइट्रोजन से। अब यहाँ पे भी कितने 4 नाइट्रोजन्स आ गए 4 नाइट्रोजन्स आ गए। याद रखिए 4 N को भी बिलोंग करता और H3 को भी बिलोंग करता। सो नाउ माई इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या है मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन 4NH3 + Cl2 गिविंग राइज टू N2H4 + 2NH4Cl। ऑलरेडी हम लोग स्टेट्स तो लिख दिए थे ना ब्रैकेट में पहले ही, दोनों करो बोल रहा वो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड बिट है बैलेंस Na + H2O गिविंग राइज टू NaOH + H2। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन जो है बैलेंस नहीं है, सोडियम 1 1 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है LHS पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 1 + 2, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 1 है ना, तो 1 + 2 3 है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आप 2 लिख सकते, कहाँ लिख सकते 2, आप 2 लिख सकते यहाँ पर सामने NaOH के। तो अब अगर मैं यहाँ पर 2 लिखी तो हाइड्रोजन्स कितने हो जाते 2 हाइड्रोजन्स + 2 हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन्स बन जाते, और यहाँ पर हाइड्रोजन्स कितने 2 ही है, और सोडियम मेटल है, तो पहले मैं क्या बैलेंस करूँगी, मेटल को बैलेंस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्योंकि 2 सामने आ गया सोडियम के, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 सोडियम्स
2 ऑक्सीजन्स, ठीक है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है 6, तो आप क्या करना है यहाँ पे भी 2 लिख देना। तो अब 2 ऑक्सीजन्स आ गए आपके पास, 4 हाइड्रोजन्स आ गए, 4 हाइड्रोजन्स, 2 ऑक्सीजन्स, 2 सोडियम, LHS पे है, और RHS पे ये LHS है अपनी, ठीक है। और RHS क्या है अपनी, RHS 2 हाइड्रोजन्स प्लस 2 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स आ गए, 2 सोडियम आ गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 है। तो देखो ऑक्सीजन्स 2 हाइड्रोजन्स 4 और सोडियम 2 है। तो इक्वेशन बैलेंस वाला क्या है, 2Na प्लस 2H2O गिविंग राइज टू 2NaOH प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आपका सेकेंड सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड सेक्शन में टेक्स्ट बुक में, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस आफ्टर राइटिंग द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब वो वर्ड्स में दे दिया आप लोगों को, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, समझाई थी ना मैं आप लोग को वर्ड इक्वेशन पार्ट 1 में। वर्ड इक्वेशन यानी वर्ड्स में जब रहता एलिमेंट उसको बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर रखना है CaOH2। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रख लीजिए आप लोग, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है। तो HNO3 पहले आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, ये पहले आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करेंगे, प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 गिविंग राइज टू वाटर H2O प्लस कैल्शियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है NO3 ट्वाइस, याद रखिए आप लोग, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 ट्वाइस। तो सबसे पहले आप देखिए कैल्शियम बैलेंस्ड है या नहीं है, कैल्शियम बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 कैल्शियम है, यहाँ पे भी 1 कैल्शियम है, हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन्स प्लस 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2H हाइड्रोजन्स है, ऑक्सीजन्स 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन्स है आपके पास, 2 + 3 5 ऑक्सीजन्स है यहाँ पे आपके पास 6 + 1 7 ऑक्सीजन्स है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। सो दैट आपके पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन्स थे, 2 + 3 6 5 ऑक्सीजन्स थे। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन्स बन गए, 2 + 6 12 बन गए। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन्स प्लस 3 × 6 ऑक्सीजन्स, 6 + 2 12 ऑक्सीजन्स बन गए आपके पास। और यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पे अगर आप 12 होना ना आपको, तो 3 + 6 4 2 8 8 + 3 नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 6 + 2 12, नहीं 6 + 2 8 बन जाता आपके पास। अच्छा एक मिनट, लेट मी काउंट दैट अगेन, 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स हो गए, 4 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन अपने पास ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन्स प्लस 3 ऑक्सीजन, नहीं यहाँ पे 2 3 6 ऑक्सीजन्स, 6 ऑक्सीजन्स प्लस 2 ऑक्सीजन्स 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन्स है, 2 ऑक्सीजन्स प्लस 3 2 6 6 ऑक्सीजन्स 8 ऑक्सीजन्स। तो 8 ऑक्सीजन्स 8 ऑक्सीजन्स पूरे ही बैलेंस्ड है, राइट। तो व्हाट इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन, CaOH2 प्लस 2HNO3 ट्वाइस गिविंग राइज टू 2H2O प्लस CaNO3 ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट बी बिट क्या है, मैग्नीशियम प्लस आयोडीन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम आयोडाइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है, प्लस आयोडीन का फॉर्मूला I2 है केमिकल फॉर्मूला, मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है MgI2। अगर आप ऑब्जर्व करिए केमिकल इक्वेशन को केयरफुली, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम है, 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन है। सो ऑलरेडी इक्वेशन जो है यहाँ पे आपका बैलेंस्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे वी हैव Mg प्लस 2HCl giving rise to MgCl2 plus H2. First let us see the question once, if this question is there or not. These 2 questions we have seen here. Now let us see the third one, whether it's there or not in the textbook. No, it's not there. Only 2 bits है आपके पास दिए हुए क्वेश्चन में, देखिए A और B bit, तो no need to do C bit and D bit। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, राइट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये वाला करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके पास जो है
ये दो नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, रिएक्ट मतलब प्लस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, गिविंग राइज टू फॉर्म मतलब गिविंग राइज टू। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl प्लस वाटर का फॉर्मूला है H2O। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके पास जो है 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है। कैसा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाज़ वक्त तो बोलता बैलेंस करो बल्कि, लेकिन ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड रहता। नेक्स्ट बिट क्या है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, रिएक्ट मतलब प्लस विद लिक्विड सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na2, सल्फेट मतलब SO4, सो सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। टू लीव मतलब गिविंग राइज टू, एरो आता। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है बेरियम का Ba, सल्फेट का फॉर्मूला SA4 एज अ प्रेसिपिटेट एंड ऑल्सो फॉर्म लिक्विड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है अपने पास। ये 2 रटने की जरूरत नहीं है आप लोग को। क्या करना, कैसे बैलेंस करना, देखिए आपके पास इक्वेशन क्या था, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिविंग राइज टू BaSO4 प्लस NaCl है आपके पास। यहाँ पर ऑब्जर्व करिए आप लोग, सोडियम जो है बैलेंस नहीं है यहाँ पे 2 सोडियम है आपके पास और यहाँ पे एक ही सोडियम है, तो आप क्या करना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। अब सोडियम्स भी 2 बन गए, क्लोरीन भी 2 बन गए, 2 सोडियम्स 2 क्लोरीन्स, 1 बेरियम 4 ऑक्सीजन्स 1 सल्फर। इक्वेशन बैलेंस्ड। बस क्या मल्टीप्लाई करना था आपको, 2 मल्टीप्लाई करना था NaCl से पहले, बिकॉज यहाँ पर 2 सोडियम्स है RHS पे, तो RHS पे भी हम लोग 2 सोडियम्स मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट विद सेपरेटली विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दी अबव रिएक्शंस। तो ए बिट जो है क्या है, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज बोथ आर सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो पोटेशियम सल्फेट बोल रहा, ठीक है, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट रिएक्ट सेपरेटली विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट सेपरेटली विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट, अच्छा, अगर पोटेशियम सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट के साथ होता रिएक्शन, पोटेशियम सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट नहीं होता रिएक्शन, बिकॉज ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, सल्फेट यहाँ पे भी है, सल्फेट यहाँ पे भी है, दोनों भी साइड रिएक्टेंट पे सल्फेट ही है, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। और वैसे अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्या हो रहा, ये हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट इज NH4 NO, अमोनियम NH4 है, अमोनियम का फॉर्मूला, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3, तो आपके पास आया NH4 NO3। अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट्स सेपरेटली विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब कैसा मिलेगा हम लोग को, RHS देखो आप लोग, ये स्प्लिट होता, ठीक है, और ये भी स्प्लिट होता, तो कॉपर किसके साथ कंबाइन होता, नाइट्रेट के साथ कंबाइन होता टू फॉर्म CuNO3, ठीक है, ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये CuNO3 ट्वाइस, प्लस अमोनियम किसके साथ कंबाइन होता, सल्फेट के साथ कंबाइन होता टू फॉर्म यहाँ पे भी NH4 ट्वाइस SO4 रहता, ठीक है, याद रखिए। तो ये इक्वेशन लिख दिए हम लोग। अब ये इक्वेशन के सामने ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, क्यों नहीं है बैलेंस्ड, अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो पहले ये 2 नहीं था, याद रखो आप लोग, ठीक है, इग्नोर दिस 2। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर वी हैव 4 2s 8 हाइड्रोजन से यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन से, खाली 4 हाइड्रोजन से, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास 2 4s 8 हाइड्रोजन मिल जाते, ठीक है, और ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन है, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है अगर जस्ट हम लोग यहाँ पे 2 ऐड करें तो, ठीक है। तो आप लोग बैलेंस वाला रटिए मत, पहले समझ के फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद बैलेंस करिए, ठीक है। फिर ये थर्ड सेक्शन में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोल के है टेक्स्ट बुक में, उसमें ये क्वेश्चन है, 2 moles of zinc react with cupric chloride solution containing 6.023 into 10^22 formula units of copper chloride. Calculate the moles of copper obtained. तो अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में दे दे रहा उन्हें, जिंक प्लस UCl2 गिविंग राइज टू ZnCl2 प्लस Cu। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें क्वेश्चन, तो उन्हें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखें तो जिंक से पहले कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 1 मोल ऑफ जिंक है,
1 मोल ऑफ जिंक और उन्हें कॉपर क्लोराइड क्यूपिक क्लोराइड कितना है बोल रहा है 6.023 इंटू 10^22 बोल रहा। और अगर 6.023 इंटू 10^22 है मतलब यहाँ पे भी कितना मोल है 1 मोल है, और इससे भी पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1 मोल ही है। ये भी कितना है 1 मोल है, ये भी कितना है 1 मोल है। अब उन्हें यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड, मतलब कितना कॉपर अपने को मिलेगा अगर यहाँ पे 1 मोल के बजाय 2 मोल्स रहे तो आप लोग याद रखिए अगर यहाँ पर 2 मोल्स भी रहे, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 मोल्स भी रहे तो भी आपको जो कॉपर है वो 1 मोल ही रहता। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता और इन दोनों को सेपरेट कर देता और जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाता, ठीक है। मतलब जिंक क्लोराइड ज़्यादा क्वांटिटी में बचेगा, ठीक है, और कॉपर थोड़ा ही बचेगा। तो जो है इवन दो हियर इफ़ वी हैव 2 मोल्स, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास कॉपर जो है 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, ओके। 2Zn 2ZnCl2 4Cl, ओके, रिमेंबर दिस। सो रीज़न भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सेकेंड क्वेश्चन था आपका उसमें था 1 मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 on combustion at STP gives a kilojoules of heat energy. Calculate the heat liberated when 2.4 liters of propane on combustion at STP. तो यह जो इक्वेशन है याद आप लोगों को, ये इक्वेशन कैसा है हम लोग टेक्स्ट बुक में भी करे थे। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 रहता, बर्न कंबस्शन बोले तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता वो, गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम किलो जोल्स ऑफ हीट निकल के आ रही बल्कि बोल रहा हो, सी गिव्स ए किलो जोल्स ऑफ हीट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्यू हियर, क्यू हीट के लिए यूज़ करते हैं ना हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ए लिख रहे हैं, और वो ए क्या यूनिट्स क्या है किलो जोल्स है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। आप लोग को ऑलरेडी आता ना इक्वेशन बैलेंस कैसे करना। अगर हम लोग बैलेंस करेंगे इक्वेशन तो O2 के सामने 5 आ जाता, CO2 के सामने 3 आ जाता, H2O के सामने 4 आ जाता, ठीक है। ऑलरेडी मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करिए आप लोग को बैलेंस कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग जाके देखिए पार्ट 2, ठीक है, ऑफ माई लेक्चर। तो यहाँ पर व्हाट इज इट आस्किंग यू टू फाइंड आउट, इट इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट कैलकुलेट द हीट लिबरेटेड व्हेन 2.4 लीटर्स ऑफ प्रोपेन ऑन कंबशन एट STP। मतलब उन्हें पूछ रहे हैं यहाँ पे हीट कितनी निकल के आ रही, हीट कितनी निकल के आ रही, मतलब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है ए। तो यहाँ पर किन दोनों के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोपेन और हीट कितनी आ रही उसके बीच में रिलेशन है। प्रोपेन कितना है यहाँ पे दिया हुआ, प्रोपेन इज गिवन एज 1 मोल, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही 2.4 लीटर्स ऑफ प्रोपेन बोल के बोल रहा हूँ। दो डेटा दिया यहाँ पे, यहाँ एक तो मोल के फॉर्म में दिया और एक वॉल्यूम के फॉर्म में दिया 2.4 लीटर्स। तो हम लोग को मालूम है जो यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल के आ रहा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये मिल रहा कि अगर ये 1 किलो जोल्स है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला STP पे कितना वॉल्यूम रहता 22.4 लीटर्स। तो 1 किलो जोल में 22.4 लीटर्स है, ठीक है। तो इट गेव 2.4 लीटर्स ऑफ प्रोपेन है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे 2.4 लीटर्स के अंदर आपके पास कितने किलो जोल्स ऑफ ए है। समझ में आ रहा। ये जो फर्स्ट स्टेप रहता हम लोग हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से देख के लिखते। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से हम लोग को आया कि ये STP पे हमेशा 22.4 रहता, 22.4 लीटर्स में 1 किलो जोल्स है। तो कितने किलो जोल्स कितनी हीट निकल के आएंगी 2.4 लीटर्स में, दैट इज अ क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैसा होता, क्वेश्चन मार्क इंटू 22.4 इज इक्वल्स टू A इंटू 2.4। सो क्वेश्चन मार्क गिव्स राइज टू A इंटू 2.4 इंटू 22.4 इफ इट गोज दैट साइड बिकम्स डिवाइडेड बाय 24। अब आप डिवाइड करिए, कैसे डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे। हियर यू कैन डू इट विद 2 टेबल, राइट। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 1 2 2 6 are 12, 3 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 8 2 8s are 16। यहाँ में 3 बच रहा है, में 28 बच रहा। तो आपके पास 3/28 रहता। आप 3/28 अगर डिवाइड करके देखेंगे, 28 बाहर रहता, 3 अंदर रहता, यू विल गेट द आंसर है 0.10714। डिवाइड करके देखिए आप, तो कितनी किलो जूल ऑफ हीट रिलीज हो रही 0.10714। बहुत कम किलो जूल ऑफ हीट लिबरेट हो रही। दैट इज योर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इट वॉज गिवन
Calculate the mass and volume of oxygen required at STP to convert 2.4 kg of graphite into carbon dioxide. तो यहाँ पर जो है इट इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर और एक डेटा दे दिया उन्हें, ग्रेफाइट का वेट मास दे दिया 2.4 kg है बोल के, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे और एक हिंट क्या दे रहा, रिक्वायर्ड आर एसटीपी, ऑक्सीजन और ग्रेफाइट दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे बोल के बोल रहा वो। तो उसके हिसाब से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। ग्रेफाइट इज नथिंग बट कार्बन, याद रखिए आप लोग। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives rise to what? Carbon dioxide. That is my balanced equation. And one more thing, here in the question it didn't give the atomic mass of carbon and atomic mass of oxygen. आपको याद कर लेना है, ये आप 9th में ही पढ़े थे, atomic mass of carbon and atomic mass of oxygen, और थ्री एलिमेंट्स के atomic masses आप लोग याद रख लीजिए। एग्जाम में देता होगा या नहीं, वी कैन नॉट से। सो ये स्टैंडर्ड जो सिंबल्स है उसके एटॉमिक मासेस याद रख लीजिए। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। और एक दे रहा हूँ यहाँ पे 2.4 kg ऑफ ग्रेफाइट बोल रहे। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस 2.4 kg इनटू ग्राम्स। हाउ टू कन्वर्ट 2.4 kg इनटू ग्राम? मल्टीप्लाई इट विथ 1000। व्हाई वी शुड मल्टीप्लाई इट विथ 1000? बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम्स। तो अगर आप 2.4 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इज यूज टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट, तो आपके पास 2 zeros बचते हैं और 24 बचता है, 2400 आता है आपके पास ग्राम्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ग्रेफाइट और ऑक्सीजन के बीच में एक रिलेशनशिप दी हुई है, राइट, जो क्वेश्चन के हिसाब से। देखो, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, और जो ने डेटा दिया किसका दिया हुआ है? ग्रेफाइट, 2.4 kg ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ है। तो ग्रेफाइट और ऑक्सीजन के बीच में जो है रिलेशनशिप दी हुई है। तो ग्रेफाइट यहाँ पे है कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन गिव्स राइज टू व्हाट? ऑक्सीजन, ऐसा लिखेंगे आप। और यहाँ पे ये मास लिखेंगे, यहाँ पे ये मास लिखेंगे, बिकॉज दोनों का मास हम लोग को मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है ना। ये कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना है कार्बन? 12 ग्राम्स। एटॉमिक मास याद रखिए वैल्यू, 12 ग्राम्स गिव्स राइज टू व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? सॉरी, नॉट हियर, हियर हाउ मच इज द ऑक्सीजन? दिस एंड दिस, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों है जो हम लोग लिख रहे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन है 16 है, और यहाँ पे 2 अटैच्ड है अपने पास। तो 2 इंटू 2 अटैच्ड है ना, तो 2 से 16 से मल्टीप्लाई करना। सो 12 ग्राम्स कार्बन में आपके पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है। फिर ये 2400 कहाँ से आ रहा? यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेटा दिया था ना, याद है आप लोग को? ये जो डेटा दिया क्वेश्चन में, और रिक्वायर टू कन्वर्ट 2.4 kg ऑफ ग्रेफाइट, ये वाला क्वेश्चन का डेटा सेकेंड लाइन में लिखना। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में तो क्या था? 2.4 kg था, दैट इज 2400 ग्राम will give how many grams of oxygen? ये है मेरा क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क इंटू 12 gives rise to 32 इंटू 12, 2400। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, ये लाइन अलग है ना, ये छोड़ दीजिए आप, ये डेटा है आपका, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 12 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2400। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2400 इंटू 12, if it comes as side, divided by 12, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 0s are 0, 12 0s are 0, 32 2s अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 64, और 2 zeros है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर इज 6400 ग्राम्स। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। याद है आप लोगों को जब मैं एक्सप्लेन करी थी तो मैं बोली थी कि आप लोगों को वो पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स में बताऊंगी। तो मास और वॉल्यूम, यहाँ पे आप मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे और यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था जो अपने को बैलेंस्ड इक्वेशन में से आया? फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन वी गॉट मास ऑफ ऑक्सीजन एज 16 ग्राम्स। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 16, सॉरी 2 इंटू 16 नॉट 16, 32, 2 इंटू 16 क्या है यहाँ पे पास? यहाँ पे 32 ग्राम्स है, यहाँ पे 32 ग्राम्स था और यहाँ पे 12 ग्राम्स था, ठीक है। तो यू हैव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 12 प्लस 2 इंटू 16, ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग लिखना चाहे तो ये लाइन में लिख सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक में है ना लिखा हुआ। तो सबसे पहले मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एज 32 ग्राम्स, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो 32 ग्राम्स में आपके पास कितना वॉल्यूम है ऑक्सीजन का? ये बैलेंस्ड इक्वेशन में से जब आप डेटा लेते तो हमेशा स्टैंडर्ड रहता, यानी यहाँ पे जो है कितना रहता? 22.4 लीटर स्टैंडर्ड वैल्यू है वॉल्यूम की। तो
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 22.4 लीटर्स है ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो क्वेश्चन में से अपने को आया था ना, कितना आया मास ऑफ ऑक्सीजन 6400 ग्राम्स, वो सेकेंड लाइन में लिखेंगे। ये जो डेटा रहता हमेशा आप इक्वेशन में से लिखते, इक्वेशन में से आपको आया ऑक्सीजन की वैल्यू 32 ग्राम्स थी और वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर्स। ये आपको आपके बैलेंस्ड इक्वेशन में से आया, ये याद रखने का है वैल्यू 22.4 लीटर्स। अब ये जो 6400 ग्राम्स, अब भी अपन कैलकुलेट करें सुबह 6400 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने लीटर्स रहेंगे। सो क्वेश्चन मार्क इंटू 32 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 22.4। ठीक है, तो यू विल गेट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 32। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास आएगा, आपको कैंसिल करे तो आप सब 4 8 ज़ा 32, ठीक है, और यहाँ पर यू विल गेट 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 या 2 4 4 6 ज़ा 24, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 1600 इंटू 22.4 आता आपको, नहीं 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 2 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई करें तो 44.8 आता, और 2 जीरोज़ बचे हुए हैं हम लोग के पास, तो 44.8 इंटू 100, 44.8 इंटू 100 विल गिव यू 4480 liters at STP। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चंस ऑफ द टेक्स्ट बुक। उसके अलावा ये सब क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए ये क्वेश्चंस के। कुछ भी डाउट है तो पूछिए, आई विल एक्सप्लेन इन द वीडियो इफ़ यू हैव डाउट। जो भी हम लोग क्वेश्चंस करें ना उसके हिसाब से ही है, बस आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करिए कैसे है क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चंस एग्जाम के लिहाज से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये टेक्स्ट बुक के अलावा, बट आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, एक्टिविटी 1 है ये, ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी। दिस इज क्या रिएक्शन ऑफ एक्टिविटी 1 इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, करोजन। ठीक है, ये रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट डू यू मीन बाय करोजन, हाउ यू कैन प्रिवेंट इट। ये जो है नहीं दिया हुआ है केमिकल इक्वेशंस में, दिस इज देयर इन योर अदर चैप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लोग अदर चैप्टर में भी कवर करेंगे। स्केलेटन इक्वेशन जो भी मैं मार्क करी यहाँ पे आप लोग या दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, वो गो थ्रू होके याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, इसमें से आएगा एग्जाम में। STP क्या है, मोला मास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर क्या है। एवोगाड्रोस नंबर मीन्स इट 1 मोल ऑफ एनी एटम विल कंटेन 6.023 into 10^23 एटम्स। ठीक है, फिर ग्राम मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स रहता। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, गो थ्रू इट, इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू। ये भी गो थ्रू हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था। इसमें मोल्स का है, मोल्स के हिसाब से है, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, देन दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। सो दिस finishes our chemical equations question and answers. I hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, then please like this video, share this video with your friends, and also please subscribe to this channel. It means a lot. Thank you very much. All the best to all of you, and have a nice day.